students. Hope you all are doing great. Welcome back once again to the Winning Edge YouTube channel. And today I am here with a new topic for you that is very important for your सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन and that is spellings. So आज हम सीखेंगे कुछ नए words की spellings. Those are very very important for you if you are appearing for your सैनिक स्कूल examination. Okay. So शब्दों की correct spellings, knowing the correct spellings of a word is very very important for you as जितना की जरूरी है जानना उसकी correct meaning. So correct meaning जानना important है, correct pronunciation जानना important है और correct spelling जानना important है. Because if you are writing something, if you're writing a essay, if you're writing question answers, then also अगर आपकी spelling mistakes बहुत ज़्यादा हैं, so that can have a very bad impression on the teacher who is checking your answers या whosoever is the reader अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं. So spellings topic से आपके सैनिक स्कूल के एग्जामिनेशन में बहुत सारे questions आते हैं. किस किस तरह के questions आते हैं wrongly spelled words से related वो भी हम आज discuss करने वाले हैं. So you should be having a adequate or a sound knowledge of the root words, the prefix, the suffix जो हम words के आगे पीछे लगाते हैं so that you can identify the correct spelling. तो पहले आप words को अच्छे से pronounce करना सीखेंगे and then only you can identify the correct spelling of that particular word. So let's begin today's class and learn a lot of new words and learn their spellings as well. So here we are having a few words as you can see on the screen. The first word is professional. तो यहाँ पे mistake क्या है? इस वाले पहले वाले word में क्या है? Single S है. So you have to remember professional शब्द को आप कैसे pronounce कर रहे हैं? Profesh. तो F-E-S-S. Professional. ठीक है? Professional. A person, जैसे एक तो कोई person होता है जो hobby के लिए काम कर रहा है और एक वो पर्सन जिस उस पर्टिकुलर ट्रेड से या उस पर्टिकुलर फील्ड से वो इनकम अर्न कर रहा है तो वी कॉल दैट पर्सन एज अ प्रोफेशनल. दैट पर्सन इज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, है ना. तो किसी चीज पे जो पर्सन उसका इनकम का सोर्स होता है उसको उस काम को प्रोफेशनली करता है दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ प्रोफेशनल. एंड द करेक्ट स्पेलिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज PROFESS, है ना. नॉट टू कंफ्यूज, ये आपको ऐसे करके मिस्टेक मिलेगा. यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. देन इज बैरिकेड. बैरिकेड एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑन द राइट साइड. बैरिकेड क्या होता है? जैसे रोड को क्रॉस करने के लिए एक रुकावट है ना लगा रखा होता है बीच में, दैट इज कॉल्ड एज अ बैरिकेड. सो द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ बैरिकेड इज BARRI. ठीक है, बैरिकेड CADE. Then the third word is pneumonia. Pneumonia में जो है आपका P is silent. So correct spelling is PNEU. So बच्चे क्या करते हैं इसमें mistake? NUE. ठीक है, that is not the correct spelling. The correct spelling is PNEUMONIA. That is the disease pneumonia. Moving on to the next list of words. Then is amateur. One word substitution, maybe we have done this word amateur. Somebody who does something for the sake of hobby, है ना, for the sake of pleasure. That person is called as a amateur and the correct spelling is AMATEUR and not AMATURE. So अगर आपको 4 spelled words मिलेंगे उसमें से आपको correctly spelled word पे टिक करना है. So always remember AMATEUR is the correct spelling of the word amateur. Then is exaggerate. Exaggerate मतलब किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना, that is called as exaggeration. So correct spelling is EXA. Okay, EXAGG. Remember R single है, ठीक है. Exaggerate. EXAGGERATE. That is the correct spelling for exaggerate. And plateau. I think सबको पता है what is a plateau. The correct spelling is PLATEAU. That is the correct spelling of plateau and not PLATUE. This is wrong spelling. So always keep on learning these spellings side by side, the correct spelling of plateau. Moving on to the next spelling, that is seismology. ठीक है, seismology क्या होती है? It is a branch of science. You can get this in one word substitution as well. A branch of science that deals with the study of earthquakes. earthquakes कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, या अर्थ पे जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड वाइब्रेशंस जो होती हैं उसके बारे में जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं सीज्मोलॉजी. तो मिसस्पेल्ड वर्ड क्या है? SESI. दिस इज रॉन्ग. SEIS. That is the correct spelling. Seismology. Break the word into various parts and then try to spell it. Seismology is the correct spelling. The next word is immaculate. Immaculate की correct spelling क्या होती है?
IM then M, 2 M आते हैं इमैक्यूलेट में। इमैक्यूलेट का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई चीज बहुत ज्यादा साफ सुथरी है, समथिंग दैट इज वेरी नीट और टाइडी, वेरी क्लीन, वेरी स्पॉटलेस, है ना, उसको आप बोलते हैं इमैक्यूलेट। सो IMMACULATE is the correct spelling for immaculate. Then this is the format that you will be getting in your exams. Exams में कैसे questions आने वाले हैं? Let's have a look. Find the correct spelling. आपको 4 words मिलेंगे और आपको correct spelling बतानी है। तो यहाँ पे adulterate, the word is adulterate. Adulterate का मतलब क्या होता है? जिसे खाने में हम कुछ मिला देते हैं, है ना, फूड में adulteration होती है, तो फूड की क्वालिटी जो है वो क्या कर देते हैं, हम खराब कर देते हैं, उसमें मिक्स कर देते हैं कुछ कुछ, तो डिटोरिएट हो जाती है फूड की क्वालिटी, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, बट लोअर हो जाती है उसकी क्वालिटी। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे कोई सॉफ्ट ड्रिंक है, उनमें हमने कुछ कुछ मिला दिया, तो उसकी क्वालिटी को आपने डिग्रेड कर दिया, डिटोरिएट कर दिया। सो करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एडल्टरेट इज द फर्स्ट ऑप्शन। ये वाली करेक्ट स्पेलिंग है, बाकी ये वाली सारी स्पेलिंग्स रॉन्ग है, क्योंकि यू हैव टू रिमेंबर TER है, यहाँ पे TAR है, ठीक है। एडल्टरेट, सब में कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस्टेक्स हैं, ADEL है यहाँ पे। तो ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, एंड यू हैव टू टेल दैट विच इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एडल्टरेट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑल्सो, ट्राई टू pronounce it correctly also, and also learn the correct spelling. जैसे कि सेंटेंस आपके लिए बनाया है हमने, the company was accused, blame किया जा रहा था कंपनी को of distributing adulterated food। तो कंपनी को ब्लेम किस चीज के लिए किया जा रहा था? कि वो गलत तरह का खाना लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। कैसा खाना? जिस खाने में मिलावट थी। सो एडल्टरेट इज कैसा खाना जिसमें आपने मिलावट कर रखी हो। Then choose the word correctly spelled. यहाँ पे भी हमें correctly spelled word choose करना है। ये easy word है। I think everyone can tell me that what is the correct spelling of families in the chat window. Family single होता है family और plural होता है families. So FAMILIES है ना, डबल L नहीं आएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मिस्टेक है। So this one is the correct spelling. यहाँ पे भी मिस्टेक है, ठीक है। families, FAMILIES is the correct spelling for families. Single, FAMILY is the correct spelling for family in singular. Okay. So now let's quickly learn few more words. फर्स्ट वर्ड इज एकोमोडेशन, है ना। एकोमोडेशन में क्या मिस्टेक कॉमनली होता है, आपको रिमेंबर करना है। 2 C है, यहाँ पे सिंगल M है, रहने की जगह होती है आपकी एकोमोडेशन, यहाँ पे क्या मिस्टेक है, सिंगल M है। ब्रेक करो आप उसको, एकोमोडेशन, ठीक है, ब्रेक इट एंड लर्न इट। देन अचीव में यहाँ पे क्या मिस्टेक है, EI is the mistake. We have to achieve our goals. हमें अपने goals achieve करने हैं, तो IE, remember ACHIEVE. Then across में यहाँ पे क्या मिस्टेक है बच्चों, 2 C लगे हुए हैं across में, बल्कि क्या होता है, सिंगल C, ACROSS is the correct spelling for across. Then aggression क्या होता है, गुस्सा, ठीक है। So AG, यहाँ पे मिस्टेक क्या है, सिंगल G, बट यू हैव टू रिमेंबर 2 G आते हैं और 2 S आते हैं, अग्रेशन, ठीक है। देन इज apparently में यहाँ पे क्या मिस्टेक है, APPA, यहाँ पे मिस्टेक है, AN लगा रखा है, बल्कि E होता है apparently, जैसे आपको कुछ समथिंग दैट यू सीन, कि apparently मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। देन इज अपीयरेंस में क्या मिस्टेक है, यहाँ पे अपीयर और यहाँ पे EN है, जबकि अपीयरेंस में क्या होता है, ANCE। तो माइन्यूट मिस्टेक्स हैं, कहीं पे E की मिस्टेक है ना। सो यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस एंड लर्न दीज वर्ड्स, अपीयरेंस, apparently, aggression, across, achieve and accommodation. The next word is argument. Argument क्या होता है, जब 2 लोगों का आपस में झगड़ा होता है, बहस होती है, then we are saying that वो आपस में argue कर रहे हैं, तो उसी से वर्ड होता है आपका argument. So ये स्पेलिंग रॉन्ग है, ARGUE बिल्कुल रॉन्ग है। करेक्ट स्पेलिंग है ARGUMENT, argument. Then is assassination मतलब कि जैसे कि कोई किसी का मर्डर करता है, कुछ पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, ठीक है, उसके लिए आप किसी को मार देते हैं, दैट इज असैसिनेशन। सो यहाँ पे मिस्टेक क्या है, सिंगल S है, बल्कि असैसिनेशन में डबल S होता है, असैसिनेशन, है ना। ब्रेक करो वर्ड को और उसको लर्न करो। नेशन आप सबको पता है, NATION, ठीक है,
A डबल S, ओके। देन इज बेसिकली, यहाँ पे क्या मिस्टेक है हम देख सकते हैं, यहाँ पे A नहीं लगाया और L सिंगल है, सो बेसिकली की स्पेलिंग क्या होती है, बेसिक, है ना, एंड ALLY दैट इज बेसिकली। देन बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब शुरुआत, बिगिनिंग में यहाँ पे क्या मिस्टेक है, BEGE कर रखा है, जबकि बिगिन, बिगिन हमेशा याद रखो BEGIN, बिगिन, एंड देन N डबल हो जाएगा NING, सो बिगिन का बनाएंगे हम बिगिनिंग। देन बिलीव, बिलीव मतलब किसी में विश्वास करना, है ना, जैसे अचीव करा था हमने बिलीव, तो बिलीव में भी यहाँ पे मिस्टेक क्या है, EI, बट इट शुड बी BELIE, है ना, रिमेंबर BELIEVE इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर बिलीव। नेक्स्ट वर्ड इज बिजार, बिजार मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज वेरी स्ट्रेंज, कोई बहुत अनयूजुअल चीज आप देखते हैं उसको आप बोलते हैं बिजार। सो यहाँ पे मिस्टेक क्या है, डबल जेड, नो इट शुड नॉट बी डबल जेड, इट शुड बी अ सिंगल जेड, BIZARRE is the correct spelling for bizarre. नेक्स्ट इज बिजनेस, बिजनेस आप सबको पता है ना, बिजनेस की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, यहाँ पे BUI कर रखा है वो रॉन्ग है, BUSI, है ना, रिमेंबर बिजनेस, BUSI। देन कैलेंडर, कैलेंडर में बहुत बच्चे स्पेलिंग को टिक कर देते हैं, रिमेंबर CALENDAR, कैलेंडर। देन कैरिबियन, कैरिबियन में क्या है, सिंगल R एंड डबल B, कैरिबियन। देन सिमेट्री, सबको पता है कब्रिस्तान जहां पे डेड बॉडीज को हम बरी करते हैं, तो सिमेट्री में यहाँ पे क्या मिस्टेक है, CEME, यहाँ पे है TARY, बट द करेक्ट स्पेलिंग शुड बी CEMETERY, ठीक है। सिमेट्री इज अ प्लेस वेयर यू बरी द डेड बॉडीज। नेक्स्ट इज शॉफर, चौफर नहीं बोलते हैं हमें, शॉफर हम उसको प्रोनाउंस करते हैं। शॉफर मतलब जैसे हम अपनी प्राइवेट कार किसी ड्राइवर से ड्राइव करवाते हैं तो उसे हम बोलते हैं शॉफर। सो यहाँ पे मिस्टेक क्या है, CHAUFFER, बट द करेक्ट स्पेलिंग इज CHAUFFEUR। देन कोलीग, यहाँ पे मिस्टेक है, कोलीग में क्या होता है, जैसे हम ऑफिस में वर्क करते हैं तो जो हमारे साथ वाले होते हैं, जो हमारे को वर्कर्स होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनको हम एक टर्म से कॉल करते हैं, दैट इज कोलीग, और करेक्ट स्पेलिंग है COLLEAGUE, नॉट दिस, ओके। देन कमिंग, इजी वर्ड है कमिंग, COMING, यहाँ पे हमने 2 M लगा दिए, सो दैट इज रॉन्ग। देन अगेन कमिटी, ये भी वर्ड बहुत बार आ रखा है सैनिक स्कूल के एग्जाम्स में, कमिटी में रिमेंबर 2 M आते हैं, 2 T और 2 E, ठीक है। जैसे कोई कमिटी फॉर्म होती है टू लुक इनटू द इन्वेस्टिगेशन, अ कमिटी वाज फॉर्म्ड, सो रिमेंबर करेक्ट स्पेलिंग इज डबल M डबल T एंड डबल E। देन इज कंप्लीटली, यहाँ पे क्या मिस्टेक कर दी हमने, कंप्लीटली यहाँ पे हमने कुछ मिस कर दिया है, करेक्ट स्पेलिंग है TE, ठीक है, COMPLETELY। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्शियस, ठीक है। कॉन्शियस में ये कॉमन मिस्टेक है कि हम S भूल जाते हैं, तो यहाँ पे जो साउंड है S और C की एक साथ है, कॉन्शियस, SCIOUS, ठीक है। देन क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी भी बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड में, क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता, सो क्यूरियोसिटी में यहाँ पे मिस्टेक क्या कर रखी है, OUS कर रखी है, बट करेक्ट स्पेलिंग है क्यूरियस, CURIOS, देन ITY। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट वर्ड फॉर यू इज डेफिनेटली, पक्का, तो डेफिनेटली में यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रखी है, ये, जबकि है डिफाइन, है ना, जो डिफाइन होता है DEFINE होता है डिफाइन, सो डिफाइन से याद रखेंगे डेफिनेटली, DEFINI, ओके। नेक्स्ट इज डायलेमा, कभी आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कि क्या करें, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ डायलेमा, तो यहाँ पे MN कर दिया है, दैट इज रॉन्ग, इट शुड बी DILEMMA, डायलेमा। देन डिसअपियर, गायब हो जाना, सो डिसअपियर में सिंगल S आएगा बच्चों, DI, it will not be double S, it will be a single S, DIS, and then appear, APPEAR, appear। देन नेक्स्ट इज डिसअपॉइंट, ठीक है, कोई बात होती है जिससे कि आप नाराज हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, तो डिसअपॉइंट में भी ऑल्सो रिमेंबर DIS, है ना, नॉट डबल S, DIS एंड अपॉइंट, APPOINT, अपॉइंट। नेक्स्ट इज एक्सटेसी, एक्सटेसी की करेक्ट स्पेलिंग होती है ECSTASY, नॉट CY, रिमेंबर C नहीं होता, S होता है, ठीक है। देन इज
एम्बैरस में क्या होता है, डबल आर, ठीक है। यू आर स्ट्रेसिंग ऑन आर एज वेल एज एस। एम्बैरसमेंट वर्ड होता है जब आपको किसी वजह से आपको बहुत ज्यादा शर्म आती है, आप ऐसे सिचुएशन में हो, देन दैट यू आर एम्बैरस्ड। सो रिमेंबर EMBARRASS। देन इज एनवायरनमेंट। यहाँ पे क्या मिस्टेक है, MANT, बट एनवायरनमेंट की क्या स्पेलिंग होती है, ENVIRONMENT। रिमेंबर MENT इज द करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस, ठीक है, एग्जिस्ट करना, एग्जिस्टेंस उसी से वर्ड बना है। तो यहाँ पे एग्जिस्ट तो ठीक है, बट टी के बाद जो ए लगाया है हमने, दैट इज रॉन्ग। एग्जिस्टेंस में क्या होता है, TENCE, एग्जिस्टेंस। देन फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर मेजर करने के लिए जैसे सेंटीग्रेड एक यूनिट है, वैसे फ़ारेनहाइट भी एक यूनिट है। तो फ़ारेनहाइट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, FAREN, ठीक है, FARENHEIT। दिस इज रॉन्ग, इट इज फ़ारेनहाइट, ठीक है, FARENHEIT इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द वर्ड फ़ारेनहाइट। देन फेमिलियर, ठीक है, किसी को आप जानते हैं, सो एंड सो पर्सन इज माई फेमिलियर। सो फेमिलियर में LI, फैमिली, ठीक है, FAMIL, देन IER, ये रॉन्ग है, बल्कि IAR होना चाहिए। देन फाइनली, फाइनली मतलब लास्ट में, फाइनली मैंने ये डिसाइड करा, तो इसमें आपको याद रखना है डबल L, फाइनली, ठीक है, नॉट सिंगल L बट डबल L। नेक्स्ट इज फ्लोरेसेंट। आपको पता है चमकीला सा कलर होता है फ्लोरेसेंट, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं आप लोगों के घर में। तो फ्लोरेसेंट में याद रखोगे FLUORESC, ये जो सेंट होता है, सेंट की स्पेलिंग याद रखोगे SCENT, ठीक है। और यहाँ पे FLUO होता है, कई बच्चे कर देते हैं FLO कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। FLUO इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर फ्लोरेसेंट। देन इज फॉरेन, फॉरेन की क्या स्पेलिंग होती है, फॉरेनर जैसे कि वर्ड होता है आपका, तो फॉरेन होता है FOREIGN, नॉट IEGN, रिमेंबर, ठीक है। ये आपकी मिस्टेक हो सकती है एग्जाम में, रिमेंबर FOREIGN। देन इज फ्यूचर को देखना, दैट इज फोरसीएबल, है ना, 3 में ब्रेक करेंगे हम उस वर्ड को, FORE, ठीक है, SEE एंड एबल। तो आप उसकी करेक्ट स्पेलिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ पे FOR के बाद मिसिंग है E, सो FORESEE and ABLE is the correct spelling for foreseeable. Next word is 40. 40 में मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, FOURTY कर देते हैं करेक्ट स्पेलिंग को, बल्कि करेक्ट स्पेलिंग है FORTY 40। देन फॉरवर्ड, आगे जाना, है ना, फॉरवर्ड होता है, बैकवर्ड होता है। तो फॉरवर्ड में भी मिस्टेक ये कर देते हैं कि फॉरवर्ड कर देते हैं, जबकि जब आप उसको करेक्टली बोलेंगे फॉरवर्ड, है ना, तो स्पेलिंग क्या होगी, FOR and WARD। देन फ्रेंड, वेरी सिंपल, फ्रेंड की स्पेलिंग सबको पता होगी, FRIEND, है ना, नॉट EIND। देन जिस्ट, जिस्ट मतलब निचोड़, है ना, किसी चीज का जिस्ट, तो स्पेलिंग है GIST, नॉट JIST। नेक्स्ट इज फर्दर, मतलब आगे, है ना, फर्दर हमें क्या करना है, तो फर्दर की करेक्ट स्पेलिंग है FURTHER, रिमेंबर THER होगा, नॉट THAR। few more words. Then persistent, persistent में मिस्टेक क्या होती है, आप कर देते हैं persistent, TANT, जबकि क्या है PERSISTENT, persistent. Then pharaoh, pharaoh की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, PHARAOH, pharaoh. Then peace, टुकड़ा, ठीक है, PIECE, पीस। एक दूसरा पीस होता है, दैट इज PEACE, पीस, दैट इज शांति, ठीक है। ये हमने होमोफोन्स वाली क्लास में करा था, पीस और पीस, बट यहाँ पे मिस्टेक क्या है, PEICE इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज पॉलिटिशियन, ठीक है, सबको पता है पॉलिटिशियंस कौन होते हैं, नेता। सो पॉलिटिशियन की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, POLITICIAN। यहाँ पे मिस्टेक क्या है, हमने आई को हम भूल गए हैं, तो पॉलिटिशियन। नेक्स्ट इज पोर्चुगीज, जो पोर्चुगल में रहने वाले लोग हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पोर्चुगीज। सो पोर्चुगीज PORTUGESE, तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, आपका यू मिसिंग है, PORTUGU, पोर्चुगीज, ठीक है, जी और यू दोनों साथ में जॉइंट हैं, सो GUESE इज द करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट इज पोजेशन, कोई आपकी चीज होती है तो हम बोलते हैं ये आई पजेस दिस, है ना, दिस इज माई प्राइज्ड पोजेशन, तो दैट इज योर बिलोंगिंग। तो पोजेशन में क्या है,
डबल एस आएगा, बट यहाँ पे आपने सिंगल एस लगा रखा है, सो दैट इज अ रॉन्ग स्पेलिंग। देन प्रिफर्ड, आप किसी चीज को प्रेफर करते हो, आपने बोला आई प्रेफर टू ड्रिंक टी ओवर कॉफी, मुझे टी ज्यादा पसंद है कॉफी से, तो प्रेफर्ड में रिमेंबर PREFE डबल आर आएगा, यहाँ पे इट इज अ सिंगल आर, सो इट इज अगेन रॉन्ग, है ना। देन इज प्रोपोगैंडा, प्रोपोगैंडा की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? PROPA, है ना, प्रोपोगैंडा, नॉट प्रोपोगैंडा, ओके। देन इज पब्लिकली, पब्लिकली में भी यहाँ पे क्या मिस्टेक है? CALLY है, जबकि पब्लिक और उसके बाद में आपने लगाना है LY, दैट इज पब्लिकली, ठीक है, यू डोंट हैव टू पुट अ A। देन रियली, REALLY, जैसे मैंने पूछा रियली डू यू नो दिस, कि आपको पक्का पता है, रियली मीन्स श्योरली, सो REALLY is the correct spelling for really. So students, that is all for today's video, and we have learned a few spellings. I hope that you will be writing these spellings and practicing them as well, and you can refer to your books. उसमें जितने भी words आपको difficult लगते हैं, keep on learning their spellings by writing them and pronouncing them too. In the next video, we'll be doing a practice exercise on spellings, so that to test your knowledge कि आपको कितनी spellings learn हुई है. So see you in the next video where we'll be doing some practice questions, जैसे कि सैनिक स्कूल के एग्जाम्स में स्पेलिंग्स टॉपिक पे आते हैं. Till then, if you have not subscribed to the YouTube channel, do subscribe to the channel and kindly like this video and share it with your friends. Bye bye for now.